business objectives. All business are guided by objectives. All business are guided by objectives. They are further classified as economic objectives and social objectives. Objectives means what is the aim, that is called as objective. Being 11th standard students, your main objective is to pass the examination with good marks and go into 12th standard. That is your main objective for this year. In the same way, in a company also, there are various objectives that a company has to achieve on a yearly basis: economic objective and social objective. Social means related to the society, economic means related to money. How the company will grow, how the company will extend, how the company will make more profit, that will come in under economic objective. In social objectives, about the society, how to safeguard the society and how to safeguard the environment, how to give quality goods to the customers, how to satisfy the customers, how to cause less pollution, less use of plastic, social awareness. All this will come under social objectives. Is this clear? So the first thing, that is economy objective, first point is earning profit. As I told you, the main objective of a company will always be earning profit. In your syllabus, it is designed in that way. That's why we will always study as earning profit as the first and foremost objective. Profit is required for survival of business and for its growth. For any business to survive, profit is required. Without profit, it cannot survive and it cannot grow as a company. Agree with this? Same example I have given of that I give you one example. I'll share that example. So as you can see over here, that how profit affects the company to grow. Economic objective, Patanjali had an economic objective. They were, as a company, from 2006 crores of revenue, they rose to 4,800 crores of revenue. Then, in 1 year, they doubled their revenue from 2 to 4 and 4 to 8. So this is called as economic objective. That is a growth of a company. Searching for new customers. So understood the meaning of growth. The first point, earning profit. Profit is required for survival of the business and for its growth. Searching for new customers. Business organization have to work hard to create new customers and also to maintain the existing customers. That means what? New customers also we have to create and existing customers also we have to maintain. Very simple example of Flipkart and Amazon I can give you all. In Flipkart and Amazon, they tell you to first register. If we register, they give us more discount. If we don't register and if we just keep on buying things, then the discount that is given to us is less. We cannot collect any points if we are not a registered customer. So why they are doing this? In order to maintain the existing customers. Always remember this. Like, maintaining the existing customers is important. And then one more thing the company has to do, that is to create new customers. जो भी हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है, जो कस्टमर्स हमारे से गुड्स खरीद रहे, उनको हमें मेंटेन करके रखना है और उसके साथ साथ नए कस्टमर्स भी बनाना है. ऐसा नहीं है कि जो कस्टमर्स का काम हो चुका है, एक बार हमसे खरीद लिया तो हम लोग उनको वापस से याद नहीं करेंगे. ऐसा नहीं. अगर एक बार एक कस्टमर ने खरीदा है तो फिर से उनको मैसेज भेजना. जैसे कि जब भी आप लाइफस्टाइल पैंटालून से खरीदते हो, तो आपको वहाँ पे जब भी सेल रहता है, यू गेट अ मैसेज फ्रॉम दैट 50% सेल, 50% सेल. वाई? बिकॉज दे नो दैट यू हैव शॉप्ड विद देम. That is called as maintaining the existing customer or to create new customers. Innovation. It is a development or positive change which results into improvement in product or process of production. It is development or positive change. Innovation means to invent new things. It is a development or positive change which results into improvement of product. इनोवेशन से क्या होता है, हमारा प्रोडक्ट जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो इम्प्रूव होता है, उसका क्वालिटी इम्प्रूव होता है और उसका जो यूज़ करने का मेथड है वो काफ़ी सिंपल हो जाता है. मोबाइल फोन, because of innovation from keypad phones, they came into smartphones, that is touch screen, isn't it? So that is called as what? That is called as innovation. Got it? The meaning of innovation. Innovation means positive change which leads into improvement of the product. पहले के लैपटॉप्स जो है बहुत हैवी रहते थे
और वो जाड़ा लैपटॉप्स रहता था पहले के टाइम में। अभी के लैपटॉप्स एकदम स्लिम में और लाइट वेट है। दैट इज कॉल्ड एज इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्ट। पहले के टाइम में अगर कंप्यूटर का जो स्क्रीन है या फिर हमारा जो टीवी है, इतना बड़ा टीवी रहता था घर पे, अभी के टाइम में टीवी का स्पेस कम है। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट। इट हैज स्पेंड मनी ऑन R&D। R&D का मतलब है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मतलब है प्रोडक्ट को और सुधारना, तो इम्प्रूव द प्रोडक्ट, क्वालिटी भी इम्प्रूव करना, उसका यूज़ करने का तरीका सब कुछ चेंज करना, इसका काम है, इनोवेशन का काम है। मार्केट का सर्वे करना। मार्केट सर्वे का मतलब होता है कि कस्टमर का जो टेस्ट है वो जानना। ठीक है, कस्टमर को क्या चीज़ पसंद आ रहा है, कस्टमर किधर से खरीद रहा है। अभी सब लोग ऑनलाइन मीडियम से खरीद रहे हैं, पहले सब लोग मॉल जाके खरीदते थे। तो ये होता है मार्केट सर्वे कि कस्टमर को कौन सा टाइप ऑफ प्रोडक्ट पसंद है। अगर एक बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नया बिस्किट कंपनी ओपन कर रहा है या फिर एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, तो पहला जाके मार्केट में सर्वे करेगा वो कि कौन सा बिस्किट कस्टमर्स को ज़्यादा पसंद है, कौन सा बिस्किट ज़्यादा सेल हो रहा है, क्रीम बिस्किट ज़्यादा सेल हो रहा है या फिर नॉर्मल बिस्किट सेल हो रहा है, जो भी टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है उसके हिसाब से क्या करेगा, मार्केट सर्वे में स्टडी करेंगे, उसके बाद ही प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। दैट इज कॉल्ड एज इनोवेशन। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, हर एक चीज़ में टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ करेंगे। टेक्नोलॉजी यूज़ करना मतलब चीज़ों को ऐसा प्रमोट करना कि कस्टमर को पता चले इजीली कि हाँ ये प्रोडक्ट भी अवेलेबल है करके। दैट इज कॉल्ड एज यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। कंपनी लाइक जोमेटो, कंपनी लाइक स्विगी, why they are able to why they were able to grow as a company, only because of this reason। उन्होंने क्या यूज़ किया, टेक्नोलॉजी यूज़ किया। पहले भी होम डिलीवरी होता था फूड का, ऐसा नहीं कि पहले होम डिलीवरी नहीं होता था। होटल्स वाले खुद आके क्या करते थे, डिलीवरी करके जाते थे। बराबर, फ़ोन पे वो लोग ऑर्डर लेते थे और डिलीवरी करके जाते थे। लेकिन कभी ये ऑप्शन नहीं था कि कौन सा फूड तुम्हारे पास अवेलेबल है। बराबर, कौन सा क्या मेन्यू क्या है तुम लोग का, वो सब अवेलेबल नहीं था। बट स्विगी ने क्या किया, स्विगी ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जिससे सब कुछ अवेलेबल है। So we'll just take a real example. We'll go to the website and we'll just find out for here that you'll come to know how big Swiggy is. Swiggy is India's largest and most valuable and online food ordering delivery platform. So because of technology, they made use of technology, and they are able. They were founded in 2014, and you can see in 2019 everybody knows what Swiggy is. What is their employee strength? Their employee strength is 2,18,000 employees. Such a big employment force they are able to generate. तो इससे हमें पता चलता है कि एक टेक्नोलॉजी का यूज़ करके एक छोटा सा कंपनी इतने बड़े कंपनी में कन्वर्ट हो गया, और उनका काम कैसे डिलीवरी करना है उनका काम है। दे आर ओनली एंड ओनली सोल एंड मेन पर्पज इज टू डू डिलीवरी। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये लोग ने एकदम अच्छी तरीके से यूज़ किया ये प्लेटफॉर्म, एंड यू कैन सी दैट all around the India they are having branches. You can see the amount of branches and the amount of delivery that they take place. इतने सारे जगह पे उनका डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया, दे डिलीवर फूड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ऐसा बिजनेस का जो टाइप है वो समझना ज़रूरी है। अभी स्विगी कौन सा बिजनेस टाइप है, स्विगी खुद का कुछ मैन्युफैक्चर करता है क्या, नहीं। स्विगी ओनली एंड ओनली डज डिलीवरी सर्विस। बट इवन दो दे आर डूइंग डिलीवरी सर्विस, वी कैन सी द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दैट दे आर एबल टू मेक। So that is more important to understand. Being commerce students, you should know how to understand things, and what is the type of business and how innovation has actually helped in this type of, in generating employment and giving good services to the customers. Market survey. Even without market survey, they wouldn't have launched such a big application. Point D, best possible use of resources. Resources are scarce and have alternative uses. Resources are scarce and have alternative uses. They should be used to its maximum and should not be wasted. The meaning of this is, whatever we are using, we have to understand that it is scarce in nature. If you are using a pencil, then wood is required. Is wood easily available? No, it is scarce in nature. Where does it come from? It comes from trees. You have to cut down trees in order to use pencil. In the same way, they should be used maximum and should not be wasted. So we should not waste things. Optimum use of resources ultimately leads to increasing profit. So whenever we are using these kind of things, we should make sure that we use it optimally. Here we are talking from the company's point of view. From which point of view? Company's point of view. So the company
company should make sure that they use the product properly, which ultimately results in increasing the profit. So if they are not wasting their resources, then ultimately they will make profit. Social objectives: supplying quality products. Every business has to provide quality products to its customers. Quality means combination of purity, safety, durability, utility, etc. As I told you, there are two types of objectives. The first objective is economic objective. The second objective is social objective. तो मैंने बताया था इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव किसके पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा, इट विल बी फ्रॉम प्रॉफिट पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द कंपनीज मनी मेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू. और सोशल ऑब्जेक्टिव में हम लोग किसका बात करेंगे, विल बी टॉकिंग अबाउट द सोसाइटी, कि सोसाइटी को क्या फ़ायदा हो रहा है बिकॉज ऑफ अ कंपनी. जैसे कि स्विगी अगर नहीं होता तो 2,18,000 एम्प्लॉयज़ लोग को जॉब नहीं रहता, कहीं ना कहीं उनको दूसरा जॉब मिला रहता, बट देन टू वो लोग 2,18,000 एम्प्लॉयज़ को जॉब दे रहे हैं. तो वो भी हमें सोचना है कि जब ये कंपनी ओपन होता है, कंपनी बड़ा होता है, तो उतने लोग को क्या मिलता है, एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है. ओके. सोशल ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट वन, सप्लाइंग क्वालिटी प्रोडक्ट. एवरी बिजनेस हैज टू प्रोवाइड क्वालिटी प्रोडक्ट टू इट्स कस्टमर. क्वालिटी मीन्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्योरिटी, सेफ्टी, ड्यूरेबिलिटी, यूटिलिटी. क्वालिटी का मतलब क्या है कि प्योर रहना चाहिए. जब भी आप एक शुगर भी खरीदने जाते हो, when you are going to buy शुगर, सबसे पहला क्या रहता है आपके दिमाग में, जो भी मैं शुगर बाई कर रहा हूँ या बाई कर रही हूँ वो प्योर रहना चाहिए, उसमें कुछ मिक्सिंग नहीं रहना चाहिए. तो प्योरिटी का मतलब वही है कि दैट शुड नॉट बी एनी मिक्सिंग एंड दैट शुड बी प्रॉपर प्रोडक्ट. जो भी प्रोडक्ट हम खरीदते हैं, हमें एक ही हमारा डिमांड रहता है कि उसका क्वालिटी एकदम प्योर रहना चाहिए. तो सेफ्टी रहना चाहिए. सेफ्टी का मतलब है कि उसमें मेंशन रहता है, एक्सपायरी डेट वगैरह मेंशन रहता है. क्यों मेंशन रहता है? द ओनली रीज़न इज़ फॉर योर सेफ्टी, क्योंकि अगर वो एक्सपायर हो गया तो तुम उसको फेंक सकते हो, यू कैन डायरेक्टली डिस्पोज इट. दैट्स व्हाई फॉर सेफ्टी पर्पस दैट डेट इज़ मेंशन. तो खरीदने के टाइम भी आप देखते हो, घर पे लाके उसे अगर घर में आपने रख दिया और कुछ महीनों बाद आप यूज़ का एक मेडिसिन है, जैसे कफ का मेडिसिन है, तो कफ चला गया तो हम लोग उसको वो जो बॉटल है उसको बाजू में रख देते हैं, बेनेड्रिल जो भी है. फिर बाद में जब भी हमें ऑफिस से कफ रहता है कुछ महीनों बाद, तभी हम लोग बॉटल में देखते हैं कि उसका एक्सपायरी हुआ है कि नहीं हुआ है. एक्सपायरी हो गया तो हम लोग उसको कंज्यूम करेंगे, नहीं कंज्यूम करेंगे. वाई? बिकॉज इट इज़ नॉट सेफ. ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी वो प्रोडक्ट्स में आता है जैसे कि फर्नीचर आइटम्स, हाउस होल्ड आइटम्स, यूटेंसिल्स, वेसल्स, ग्लास आइटम्स. ये सब चीज़ किस में आता है, ड्यूरेबिलिटी में आता है. कि जो भी हम खरीद रहे हैं वो कितना साल के लिए चलेगा. अगर एक फर्नीचर हम खरीद रहे हैं घर के लिए, एटलीस्ट एक 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, तो वो ड्यूरेबल देना चाहिए, मतलब टिकना चाहिए. ऐसा नहीं कि गिर गया तो टूट गया, फिर पानी लगा तो फिर खराब हो गया, ऐसा नहीं रहना चाहिए. तो उसे क्या कहते हैं, ड्यूरेबिलिटी. दैट इज कॉल्ड एज ड्यूरेबिलिटी. ड्यूरेबिलिटी मीन्स द प्रोडक्ट शुड बी लॉन्ग लास्टिंग. यूटिलिटी, यूटिलिटी मीन्स यूज ऑफ द प्रोडक्ट. So whenever you are buying things, you make sure that it has proper utility. उसका यूज होना, दैट इज कॉल्ड एज यूटिलिटी. अगर कोई प्रोडक्ट में यूटिलिटी नहीं है तो हम लोग उसको बाय नहीं करेंगे. बी पॉइंट, अवॉइड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस. ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस आप लोग को पता ही है, ऐसे नहीं कि नहीं मालूम है. ब्लैक मार्केटिंग का मतलब है जो प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं है उसको ज़्यादा रेट में सेल करना. उसे क्या कहते हैं, ब्लैक मार्केटिंग. मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट. कुछ कुछ एडवर्टाइजमेंट में ऐसा आता है जिससे स्पेशली छोटे बच्चे लोग जो है वो एकदम मोटिवेट हो जाते हैं खरीदने के लिए, और मम्मी डैडी इससे बहुत जिद करते हैं कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए करके. फॉर एग्जांपल, अगर एक छोटा सा स्नैक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो स्नैक्स मैन्युफैक्चर करता है, चिप्स वगैरह, तो वो लोग क्या करता है, ऐसा एडवर्टाइजमेंट निकालेंगे छोटा भीम का, कि उसके अंदर एक छोटा सा टॉय डाल देंगे एज अ गिफ्ट. वो किसके अंदर, जो भी खाने पीने का स्नैक्स का पैकेट है उसके अंदर, कोई भी कंपनी का नाम हम लोग ले सकते हैं. और फिर क्या करेंगे, वो लोग वो पैकेट को नहीं प्रमोट कर रहे, वो लोग वो छोटा सा कैरेक्टर को प्रमोट करते हैं. छोटा भीम हो गया, स्पाइडरमैन हो गया. फिर इवेंचुअली बच्चे लोग ऐड देखते हैं और बोलते हैं कि मुझे उसके अंदर वो टॉय मिलने वाला है. तो इसके लिए वो लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट खरीदते हैं और वो जो अनहेल्दी प्रोडक्ट है वो लोग को कंज्यूम भी करते हैं. तो इसे क्या कहते हैं, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट. तो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट इज़ नॉट गुड. रॉन्ग मेजरमेंट. रॉन्ग मेजरमेंट का मतलब है कि आपने खरीदा एक अमाउंट, मतलब 1 किलो आपने खरीदा लेकिन एक्चुअल में आपको 950 ग्राम ही मिला. तो इसे कहते हैं रॉन्ग मेजरमेंट. तो ये सब अवॉइड करना चाहिए. ये एग्जांपल्स दिया हुआ है. किसे अवॉइड करना चाहिए, बिजनेसमैन को अवॉइड करना चाहिए. अगर एक पैकेट में 50 ग्राम का जो भी एक छोटा सा प्रोडक्ट सेल कर रहे हो
तो 50 ग्राम का रहना ही चाहिए। अगर 50 ग्राम का नहीं है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, कस्टमर्स को ऐसा लगेगा कि हमें चीट किया गया है करके। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, बिजनेस इज सोशियो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट। देखो एकदम सिंपल वर्ड में दिया हुआ है। सोशियो का क्या मतलब है? सोसाइटी। इकोनॉमिक का मतलब है प्रॉफिट भी कमाना है, सोसाइटी का वेलबींग भी देखना है, और साथ में क्या कमाना है? प्रॉफिट भी कमाना है। इसके लिए उसे क्या कहा जाता है? बिजनेस इज अ सोशियो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। बिजनेस शुड क्रिएट जॉब फॉर स्किल्ड एंड अनस्किल्ड पीपल। यहाँ पे फिर से हम लोग स्विगी का एग्जाम्पल देखेंगे। स्किल्ड और अनस्किल्ड पीपल। अनस्किल्ड का मतलब है जो डिलीवरी बॉयज है वो लोग अनस्किल्ड पीपल है। स्किल्ड मीन्स जिसने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, जो लोग ऑर्डर प्लेस होता है उसको बराबर से इवेल्युएट करते हैं और ऑर्डर डिलीवर होगा कि नहीं, जो भी उनका रेस्टोरेंट्स में का मेन्यू है उसको अपडेट करना डेली बेसिस में, कौन सा रेस्टोरेंट चालू है कौन सा नहीं चालू है, कहाँ से डिलीवरी हो पाएगा किधर से डिलीवरी नहीं हो पाएगा, ये सब क्या हो गया? स्किल्ड पीपल का काम हो गया। तो बिजनेस में हमेशा दोनों का ज़रूरत रहता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्किल्ड पीपल ही चाहिए। दे आर इन नीड ऑफ बोथ स्किल्ड एज वेल एज अनस्किल्ड पीपल। दे शुड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू क्रिएट इकोनॉमिकली बैकवर्ड एंड दिव्यांग पर्सन। इकोनॉमिकल बैकवर्ड सेक्शन को हेल्प करना चाहिए। इट ब्रिंग्स वेलफेयर टू सोसाइटी। तो एम्प्लॉय का ध्यान रखना एंड टू टेक केयर ऑफ द एम्प्लॉय, टू पे देम प्रॉपर वेजेस, अच्छा वर्किंग कंडीशन देना, काम करने की जगह पे उनको अच्छा फैसिलिटी देना, ये सब काम किसका है? ऑर्गेनाइजेशन का है। अगर बिजनेस ये सब नहीं प्रोवाइड करेगा तो एम्प्लॉय सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे। तो वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी मतलब अगर एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखते हैं तो सोसाइटी का ध्यान रखना, ऐसा हो गया। दिस कैन बी अचीव्ड बाय प्रोवाइडिंग फेयर एंड रेगुलर रेम्यूनरेशन। रेगुलर मीन्स कॉन्स्टेंट। गुड वर्किंग कंडीशन हमेशा अच्छा रहना चाहिए। अगर वर्किंग कंडीशन हमारा अच्छा नहीं है तो ऑब्वियसली हम लोग को प्रॉब्लम हो सकता है, जो भी एम्प्लॉयज़ है उनको काम करने में प्रॉब्लम हो सकता है। अच्छा यहाँ पे हम लोग एम्प्लॉयज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि कंपनी जितना एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा अच्छा वर्किंग कंडीशन देता है, जैसे कि अगर एक लेबर है तो लेबर को जब भी लोग काम कर रहे हैं तो उनको हेलमेट देना, उनको प्रॉपर इक्विपमेंट्स देना। आपने कंस्ट्रक्शन साइट्स में देखा रहेगा गमबूट्स वगैरह पहनते हैं वो लोग, प्रॉपर हेलमेट्स पहनते हैं। तो ये सब क्या हो गया? गुड वर्किंग कंडीशन। इनपार्शियल पर्सनल पॉलिसी मतलब बायस नहीं रहना चाहिए, पार्शियल नहीं रहना चाहिए, इनपार्शियल। जो काम कर रहा है उसको प्रमोशन मिलना चाहिए, ये सब हो गया इम्पार्शियल पर्सनल पॉलिसीज। ऑफरिंग इंसेंटिव्स एक्सेट्रा, इंसेंटिव्स ऑफर करना यानी कि जो अच्छा काम कर रहा है उसको एक्स्ट्रा पैसा देना। हेल्प टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम, ड्यू टू रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन मेनी सोशल प्रॉब्लम्स अराइज। अभी इंडस्ट्रीज बढ़ रहा है तो उतना प्रॉब्लम भी बढ़ेगा, ये हमें ध्यान में रखना है। ये सिर्फ इंडिया में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये प्रॉब्लम है कि जहाँ पे भी इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा है, जहाँ पे बिजनेस ज़्यादा हुआ है, उधर ये सब चीज़ों का प्रॉब्लम फेस करना ही पड़ता है बाय डिफ़ॉल्ट। जैसे कि अगर आप देखोगे कि स्लम्स, छोटे-छोटे घर जो है, एकदम छोटे-छोटे घर, वो विलेज में कभी नहीं दिखेंगे आपको। विलेज में छोटे घर दिखेंगे लेकिन इतना लोग एक-दूसरे मतलब डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, वहाँ पे उतना जगह रहता है। विलेज में कभी ट्रैफिक जैम होता है क्या? अगर एक गाँव में आप गए हो, तो वो ट्रैफिक जैम है, हमेशा ट्रैफिक जैम रहता है, ऐसा होता है? नहीं होता है। वहाँ पे वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन रहता है क्या? नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि एक विलेज में इंडस्ट्रियलाइज़ेशन नहीं है। इंडस्ट्रियलाइज़ेशन कहाँ पे देखने को मिलेगा? इन सिटीज़, जैसे कि मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, बैंगलोर, अहमदाबाद, ये सब हॉटस्पॉट्स है। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइज़ेशन ग्रो हुआ है। तो जिधर इंडस्ट्रियलाइज़ेशन ग्रो हुआ है, वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट स्लम्स भी रहेंगे, ट्रैफिक जैम भी रहेंगे। अभी स्लम्स कैसा स्टार्ट होता है? स्लम्स का मतलब तो पता है आप लोग को। स्लम्स कैसा स्टार्ट होता है कि अगर एक एम्प्लॉयी एक इंडस्ट्री में काम कर रहा है, तो वो क्या करता है, वो इंडस्ट्री के बाजू में ही छोटा-सा अपना घर बना देता है, जहाँ पे लैंड अवेलेबल है या फिर उसको एकदम कम रेट में किसी ने दे दिया। तो वो क्या करेगा, छोटा-सा घर बना के वहीं पे रहने स्टार्ट करता है क्योंकि उसको उधर से काम पे जाना है। तो ऐसा सब एम्प्लॉइज़ जो एकदम लो वेजेस के एम्प्लॉइज़ है, लोग उसके बाजू में यूजुअली क्या करते हैं, लोग जहाँ पे जॉब करते हैं उसके बाजू में रहना पसंद करते हैं, ताकि जो टाइम में वो बच सकता है, ट्रैवलिंग का टाइम क्या हो जाता है, सेव हो सकता है इसके लिए। तो इन द सेम वे ऐसे ही धीरे-धीरे करके इंडस्ट्री के आजू-बाजू में क्या बनता है, स्लम स्टार्ट होता है। 1 घर, 2 घर, फिर 50, 100, 200, 1000 घर ऐसा बन जाता है। तो इंडस्ट्रियलाइज़ेशन जहाँ पे नहीं है, वहाँ पे स्लम्स नहीं है, ये भी हमें याद रखना है।
ट्रैफिक जाम भी किधर ज़्यादा है, जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा है. Business should be aware of this and should not try to reduce them and should try to reduce them. तो बिजनेस को ये सब चीज़ का अवेयरनेस रहता है. और ये स्लम्स का तो क्वेश्चन मार्क है, लेकिन हाँ ट्रैफिक जाम तो कम कर सकते हैं. जैसे कि अगर कंपनी का एक बस रहेगा, तो एक बस में अगर सब लोग आ जाते हैं, तो फिर क्या होगा, ट्रैफिक जाम कम हो जाएगा. सब लोग अपना अपना व्हीकल लेके आने से अच्छा क्या करेंगे, एक ही बस में अगर सब लोग आएंगे तो ट्रैफिक जाम कम होएगा. एयर पोल्यूशन कम करना, वाटर पोल्यूशन कम करना, दीज आर ऑल ड्यूटीज ऑफ बिजनेस. कंट्रीब्यूटिंग टू वेलफेयर ऑफ सोसाइटी. अभी बहुत सारे बिजनेस का जो है उनका एनजीओज रहता है. टाटा का बहुत सारे एनजीओ है, रिलायंस का भी एनजीओ फाउंडेशन है, कोटक महिंद्रा का खुद का एनजीओ है. तो एनजीओ में वो लोग क्या करते हैं, फ्री स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं. यानी कि जो अच्छे पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं उनको फ्री में स्कॉलरशिप मिलता है हायर एजुकेशन के लिए. या फिर अगर एक कंपनी में किसी का बच्चा अच्छे से पढ़ रहा है तो उसे स्कॉलरशिप मिलता है हायर एजुकेशन के लिए, वो लोग डोनेशन देते हैं. तो ये भी बहुत सारे एम्प्लॉयज करते हैं. खासकर टाटा का नाम बहुत आगे. टाटा इज वेल नोन इन कंट्रीब्यूटिंग द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. टाटा हॉस्पिटल, टाटा मेमोरियल, all these things are for the welfare of the society. They should give donations for a cause. तो जब भी एक गुड कॉज रहता है उसके लिए लोग क्या करते हैं, डोनेशन देते हैं. समटाइम्स व्हेन फ्लड comes or heavy rainfall, because of heavy rainfall there is flood and all, there is some accident, there is some earthquake, what time maybe this big business they help the society. So this completes our business objectives, that is economic objectives and